اس اہم خبر کے ساتھ بدین میں نیب اور ایف آئی اے کی اومنی گروپ کی شوگر ملز پر چھاپہ مار کارروائی، ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا۔ منی لانڈرنگ الزام میں عبدالمجید اور عبدالغنی 27 اگست تک جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے ہیں۔ ایف آئی اے نے آصف زرداری اور فریال تالپور کو بھی کل چوتھی مرتبہ طلب کر رکھا ہے۔ پیپلز پارٹی کے دونوں رہنماؤں کو صبح 11 بجے تک پیش ہونے کے لیے نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ بدین میں نیب اور ایف آئی اے کی جانب سے اومنی گروپ کی شوگر ملز پر چھاپے مار کارروائی کی گئی، جہاں پر ریکارڈ بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ منی لانڈرنگ الزام میں انور مجید اور عبدالغنی 27 اگست تک جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیے گئے ہیں، جبکہ ایف آئی اے نے آصف زرداری اور فریال تالپور کو کل طلب کر رکھا ہے۔ بدین میں نیب اور رینجرز کا اومنی گروپ کی کھوسکی شوگر ملز پر کریک ڈاؤن۔ مشترکہ آپریشن میں 2 نیب اہلکاروں اور رینجرز کی 7 گاڑیوں نے حصہ لیا۔ عدالت نے منی لانڈرنگ الزام میں عبدالمجید اور عبدالغنی کو 27 اگست تک جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر رکھا ہے۔ ادھر آصف زرداری اور فریال تالپور کو چوتھا بلاوا آ گیا۔ ایف آئی اے نے اسکینڈل میں ملوث آصف زرداری اور ان کی ہمشیرہ کو کل 11 بجے پیش ہونے کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ ایک اور اہم معاملہ، وزارت عظمیٰ کے بعد صدارتی انتخاب کے لیے بھی متحدہ اپوزیشن ایک پیج پر نہیں آ سکی۔ پیپلز پارٹی صدارتی امیدوار کے لیے اعتزاز احسن کے نام پر ڈٹ گئی۔ خورشید شاہ کہتے ہیں نون لیگ کو فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ شہباز شریف سلجھے سیاست دان ہیں، بات سمجھیں گے اور مثبت فیصلہ کریں گے۔ ادھر پیپلز پارٹی کے فیصلے کے بعد شہباز شریف نے پارٹی رہنماؤں سے صلاح مشوروں کے لیے رابطے بڑھا دیے۔ صدر کے انتخاب کے لیے اپنا امیدوار لائیں یا الیکشن میں حصہ نہ لیں۔ نون لیگ نے مختلف آپشنز پر سوچ بچار شروع کر دی، آج شام تک اپنے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ دوسرے جانب مولانا فضل الرحمان نے بھی شہباز شریف کو منانے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ وزارت عظمیٰ کے بعد صدارتی انتخاب، پھر بھی متحدہ اپوزیشن متحد نہ ہو سکی۔ متفقہ صدارتی امیدوار لانے کے لیے اپوزیشن کا جوڑ توڑ جاری، معاملہ تول پکڑ گیا۔ نون لیگ اعتزاز احسن کو ماننے کے لیے تیار نہیں تو پیپلز پارٹی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اس وقت پاکستان کو ایسے شخص کی سخت ضرورت ہے جو شخص پاکستان کے لیے، صرف پارٹی کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے اس کا کیس لے کے دنیا میں بات کر سکے، ایکسٹمپور بات کر سکے۔ پیپلز پارٹی کے فیصلے کے بعد شہباز شریف کے پارٹی رہنماؤں سے رابطے میں تیزی آ گئی۔ نون لیگ کی اکثریت اعتزاز احسن کو ووٹ دینے کے حق میں نہیں۔ صدر کے انتخاب کے لیے اپنا امیدوار لائیں یا الیکشن میں حصہ نہ لیں، مختلف آپشن پر غور جاری۔ مسلم لیگ نون شام تک اپنے لائحہ عمل کا اعلان کرے گی۔ ادھر مولانا فضل الرحمان بھی اپوزیشن کی ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے سرگرم ہو گئے۔ شہباز شریف کو منانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے۔ مری میں ہونے والی اے پی سی کے بعد پیپلز پارٹی اپنے صدارتی امیدوار کی حمایت کے لیے سرگرم ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کا وفد غلام احمد بلور سے ملاقات کے لیے پشاور روانہ ہو گیا۔ وفد میں خورشید شاہ، اعتزاز احسن، نوید قمر اور قمر زمان کائرہ شامل ہیں۔ مزید بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد جاوید بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید بتائے گا، اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، ابھی کیا لائحہ عمل اختیار کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی طرف سے ابھی صدارتی امیدوار کے لیے جو ہے وہ بھرپور کمپین شروع کی گئی ہے اور تمام جماعتوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ رات پیپلز پارٹی کے وفد نے مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کی اور اب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ایک اعلیٰ سطحی وفد پشاور روانہ ہوا ہے، پشاور کے پہنچ چکا ہے، جہاں پر اے این پی کے رہنماؤں سے ملاقات ہوگی۔ انہیں قائل کیا جائے گا کہ وہ صدارتی امیدوار کے لیے انہیں ووٹ دیں اعتزاز احسن کو، جبکہ پیپلز پارٹی دیگر جماعتوں سے بھی رابطے کر رہی ہے۔ نون لیگ اس وقت جو ہے وہ مشکل کا شکار نظر آ رہی ہے۔ نون لیگ کا بھی مشاورت جاری ہے جو آج شام تک وہ بھی اپنا فیصلہ کر لے گی، تاہم کل جو ہے وہ حتمی نامزدگی پیپر جو ہے جمع کروائے جائیں گے۔ بہت شکریہ، بیورو چیف اسلام آباد جاوید بلوچ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اس وفد میں خورشید شاہ، اعتزاز احسن، نوید قمر اور قمر زمان کائرہ شامل ہیں۔ دل کے ارماں دل میں ہی رہ گئے، امیر محمد خان کو گورنر بلوچستان بنانے کی ترجمان وزیر اعظم ہاؤس نے تردید کر دی۔ گزشتہ روز تحریک انصاف میڈیا سیل نے امیر محمد خان کو گورنر بلوچستان نامزد کرنے کی تصدیق کی، لیکن نامزدگی کے اطلاعات کے بعد یو ٹرن لے لیا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس کے ترجمان کہتے ہیں کہ گورنر بلوچستان کے لیے امیر محمد خان جو گیزئی محض نام آیا، یہ تجویز تھی، کوئی حتمی فیصلہ نہیں تھا، جس پر بعض شواہد کے باعث پیش رفت روک دی گئی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان آج گورنر بلوچستان کے لیے مشاورت کریں گے۔ یہ معاملہ کیا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آج میں اپنی عزت کی خاطر، خاص کر میں عمران خان کی عزت کی خاطر جو وہ اس وقت پی ٹی آئی کو ہیڈ کر رہا ہے، میں ان کی خاطر
इस ओहदे को, मेरे लिए इस ओहदे की कोई अहमियत नहीं है। अमीर मोहम्मद खान जोक्सई वजाहतें देते रह गए। पीटीआई हुकूमत ने उन्हें गवर्नर बलोचिस्तान लगाने की तरदीद कर दी। तर्जुमान वजीर आजम हाउस का बयान आया है, गवर्नर बलोचिस्तान के लिए अमीर मोहम्मद खान के नाम की महज तजवीज आई, हतमी फैसला नहीं किया गया। बाज वजूहात की बिना पर इस पर पेशरफ्त रोक दी गई। इससे कबल अमीर मोहम्मद खान जोक्सई ने अपने वीडियो पैगाम में वजाहत की थी, नैब क्लियरेंस तक हल्फ ना उठाने की बात की, गवर्नर बलोचिस्तान बनने से इनकार नहीं किया। जो वो इस वक्त पीटीआई को हेड कर रहा है, मैं उनकी खातिर इस ओहदे को, मेरे लिए इस ओहदे की कोई अहमियत नहीं है। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान आज गवर्नर बलोचिस्तान के लिए नए नामों पर मुशावरत करेंगे। संगीन गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ का एक वकील वजीर कानून, दूसरा अटॉर्नी जनरल मुकर्रर। वजीर आज़म इमरान खान ने अनवर मंसूर को अटॉर्नी जनरल बनाने की मंजूरी दे दी। सदर ममनून हुसैन जल्द तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत का एक और मुतनाज़ा फैसला, मुशर्रफ के एक और वकील कप्तान 11 का हिस्सा बन गए। वजीर आजम ने संगीन गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ के वकील अनवर मंसूर को अटॉर्नी जनरल बनाने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन 1-2 रोज तक जारी किया जाएगा। इससे कबल पीटीआई परवेज मुशर्रफ के वकील फरोग नसीम को भी वजीर कानून के ओहदे पर फाइज कर चुकी है। अपोजिशन हल्के पहले ही मुशर्रफ दौर के वज़रा को वफाकी काबीना का हिस्सा बनाने पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कुछ मजीद अहम खबरें इस टॉप 5 में। चेयरमैन सेनेट ने तहरीक इंसाफ के शिबली फराज को कायदे ईवान और नून लीग के राजा सफरुल हक को कायदे हिस्ब इख्तलाफ मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशंस भी जारी। शहरी रहमान को अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटा दिया गया। एफिड्रेन केस में सजा याफ्ता मुजरिम हनीफ अब्बासी की तबीयत संभलने लगी। डॉक्टरों ने RIC में जेर इलाज लीगी रहनुमा को तिब्बी मुआयने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया, फिर अडयाला जेल मुंतकिल। आम इंतखाबात के दिन RTS सिस्टम क्यों बैठा, वजूहात क्या थी? रहमान मलिक ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिख दिया, जिसमें मुतालबा किया गया है कौमी मुफाद की खातिर RTS की नाकामी की मुकम्मल तफ्तीश की जाए। तहरीक इंसाफ के शाह फरमान 28 अगस्त को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का हल्फ उठाएंगे। नून लीग के जफर इकबाल झगड़ा पहले ही अपने ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं। अल अजीज़िया फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत की एक बार फिर डेडलाइन खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालत की तोसी के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 अगस्त को समाअत करेगा। 20 दिसंबर तक रेलवे को अपने कदमों पर खड़ा करेंगे, खसारा भी इसी साल कम करके दिखाएंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद का ऐलान, कहते हैं आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लेने वालों की डिमोशन करेंगे। CPAC को स्टैंड गेज की तरफ ले जाने की तजवीज़ दी। रेलवे में हफ्ते की कोई छुट्टी नहीं। उन्होंने कहा कि इमरान खान के विजन के मुताबिक काम करने की ठान ली है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस आम खबर के हवाले से। शेख रशीद का यह कहना है कि 20 दिसंबर तक रेलवे को अपने कदमों पर खड़ा करेंगे, खसारा भी इसी साल में ही कम करके दिखाएंगे। उनका मजीद कहना था कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लेने वालों की डिमोशन करेंगे। 120 दिन का हमारा टारगेट है जी। 30 दिसंबर तक इंशाल्लाह रेलवे को खड़ा करेंगे अपने मुकाम पे। हमारी हफ्ते की छुट्टी जो है वो नहीं है हेडक्वार्टर में। 1 घंटा मजीद रेलवे के ऑफिसर्स काम करेंगे। रेलवे में जो प्रमोशन आउट ऑफ टर्न हुई है, इलीगल हुई है, उसको डिमोशन करने का हमने फैसला किया। CPAC में मैंने ये तजवीज़ पेश किया कि स्टैंडर्ड गेज की तरफ जाए। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं इक़्तिदार में बैठे लोग नए नहीं। परवेज मुशर्रफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ भी यही लोग थे। आज भी वही पुराने चेहरे इक़्तिदार पर काबिज हैं। हुकूमत को वक्त देना चाहते हैं ताकि पता चले कि वादे किस हद तक सच साबित हुए। उन्होंने इस हवाले से मजीद ये कहा कि परवेज मुशर्रफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ भी यही लोग मौजूद थे। इक़्तिदार में जो लोग अभी बैठे हुए हैं वो नए नहीं हैं। आज भी वही पुराने चेहरे इक़्तिदार पर काबिज हैं। हुकूमत को वक्त देना चाहते हैं ताकि पता चले कि वादे किस हद तक सच साबित हुए। उन्होंने मजीद क्या कहा, देखते हैं काशिफ सुलेमान की रिपोर्ट में। लाहौर के मुकामी होटल में जमात इस्लामी के 77वें यौम तासीस की तकरीब मुनक्कद की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा, इलेक्शन जैसा हुआ वो सारी दुनिया जानती है। उनकी कामयाबी को तस्लीम नहीं किया गया,
इसलिए रेत की बूरी से नहीं लड़ना, इस रेत की बूरी की पीछे जो दुश्मन है उस दुश्मन का इदराक कर ले। इलेक्शन से पहले ही सारे फैसले हो गए थे। हॉलैंड में गुस्ताखाना खाकों के बारे में सिराजुल हक ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान हॉलैंड के सफीर को मुल्क बदर करे और OIC का इजलास तलब करे। हॉलैंड के सफीर को निकाले और फौरी तौर पर OIC का इजलास बुला ले, इससे अहम कोई और इशू हमारे लिए नहीं है। सिराजुल हक ने यह भी कहा, जमात इस्लामी दूसरी जमातों की तरह बैनुल अक़वामी अदारों के मातहत नहीं। मैंने कहा कि एक ईद वो है जो आम खवातीन मनाती हैं और एक ईद वही है जो जमात इस्लामी का कारकुन वो मनाता है। हम जो निज़ाम हुकूमत चाहते हैं उसके लिए कोई गैर शरई और गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं कराची का, जहां सुपर हाईवे खिलजी गोट में पुलिस और मुसल्लह मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग के तबादले की जद में आकर नौजवान की हलाकत का मामला। पोस्टमार्टम ने पुलिस का पोल खोल दिया। मकतूल बिलाल को 2 गोलियां लगीं। जख्मों की नौयत से शुबा है कि पुलिस की गोली लगी है। रजब अली की रिपोर्ट देखते हैं। कराची सुपर हाईवे से मुलैका इलाके में पुलिस और मुसल्लह अफराद के दरमियान फायरिंग के तबादले में तालिब इल्म की हलाकत। मेडिको लीगल जराये के मुताबिक मकतूल बिलाल को 2 गोलियां बाएं जानिब से लगी। एक गोली बाजू से आर पार हुई और दूसरी गोली बाजू से आर पार होने के बाद सीने से भी आर पार हुई। शुबा है कि इतनी ताकत छोटे हथियार में नहीं बल्कि गोली बड़े हथियार से चलाई गई। तहकीकात के दौरान पुलिस को जाए वकुआ से 9mm की गोलियों के 3 खोल, 30 बोर के 4 और SMG के 2 खोल मिले। पुलिस ने जान छुड़ाने के लिए फौरी तौर पर मां की मुद्दत में नामालूम शख्स के खिलाफ नामालूम रंजिश की बिना पर कत्ल किए जाने का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन कत्ल के शवाहिद पुलिस के ही खिलाफ जा रहे हैं। रजब अली, नियो न्यूज़, कराची। और अब नजर डालते हैं क्राइम एंड सोशल राउंड अप पर। फैसलाबाद में एक और हवा की बेटी नाम निहाद गैरत की भेंट चढ़ गई। मंसूराबाद के इलाका में संगदिल बाप ने अपनी ही बेटी को डंडों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गया। डायरेक्टर को रास्ता क्यों नहीं दिया, कसूर में एक्शन फिल्म चल गई। नवाही गांव बहमनी वाला में 2 ग्रुपों के एक दूसरे पर छुरियों और लाठियों के वार। तसादुम में 30 से ज्यादा शदीद जख्मी, 6 को तशवीशनाक हालत में जनरल अस्पताल लाहौर रेफर कर दिया गया। जिंदगी ने मंजिल तक पहुंचने की मोहलत न दी। गोजर खान में तेज रफ्तार कार पुल से टकराने से एक ही खानदान के 5 अफराद मौत की आगोश में जा सोए। वजीर आला पंजाब ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। लड़की को अस्पताल दाखिल कराना है तो शनाख्ती कार्ड लाओ। पाकपतन में डॉक्टर्स की हठधर्मी ने खातून की जान ले ली। वर्षा इंसाफ की दुहाइयां देने लगे। DC पाकपतन का वर्षा पर दबाव, जबरदस्ती मसालहती कागजात पर दस्तखत करा लिए। बिहाड़ी में रिश्ते के तनाजे पर 2 ग्रुप आमने सामने आ गए। झगड़े में फायरिंग और खंजरों का आजादाना इस्तेमाल हुआ। नतीजे में एक शख्स जान से गया, दूसरा जख्मी हो गया। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से, जहां दरिया चनाब में मकाम पर डूबने वाले 3 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक बच्चों में 10 साला ज़ैनब, 12 साला मारिया और 9 साला रामेश शामिल हैं। तीनों बच्चे गुज़श्ता रोज़ चाचा के साथ पिकनिक मनाने दरिया पर गए थे। अफसोसनाक वाक़या पेश आया मंडी बहाउद्दीन में, जहां दरियाए चनाब के मकाम पर डूबने वाले 3 बच्चों की लाशें निकाल ली गई हैं। इन जाँ बहक बच्चों में 10 साला ज़ैनब, 12 साला मारिया और 9 साला रामेश शामिल हैं। तीनों बच्चे गुज़श्ता रोज़ चाचा के साथ पिकनिक मनाने दरिया पर गए थे। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करते हैं, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। कराची, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत कई शहरों में घंटों बिजली गायब। गर्मी और हब्स के मारे शहरियों को दोहरे अजाब में डाल दिया गया। अपडेट कर रहे हैं आपको लोड शेडिंग के हवाले से। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरी काफ़ी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। कराची, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत कई शहरों में घंटों बिजली गायब रही। गर्मी और हब्स के मारे शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया गया। लोड शेडिंग का जिन फिर से बेकाबू, शहर शहर घंटों बिजली गायब, आवाम का जीना महाल हो गया। कराची में मौसम हुआ मेहरबान तो के इलेक्ट्रिक ने शहरियों को कर दिया परेशान।
गैर अरानिया लोड शेडिंग ने लोगों का सुकून गारत कर डाला। लाहौर में गुलबर्ग, समनाबाद, धर्मपुरा और मुगलपुरा समेत कई इलाकों में बिजली की आग मचोली का सिलसिला जारी। गर्मी और हब्स के 27 शहरी सर पकड़कर बैठ गए। फैसलाबाद और मुल्तान में भी गैर अरानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। पेशावर में भी बदतरीन लोड शेडिंग ने लोगों के नाक में दम कर दिया। अहम खबर शामिल करते हैं। वजीर आजम इमरान खान के ज़ेर सदारत बनी गाला में पंजाब काबीना के लिए मुशावरती इजलास शुरू हो गया। इमरान खान आज वजीर आला पंजाब से काबीना पर हतमी मुशावरत करेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, अलीम खान, यास्मीन राशिद, मियाँ असलम इकबाल इजलास में मौजूद हैं। मियाँ महमूद रशीद और फयाजुल हसन चौहान समेत दीगर अरकान भी बनी गाला इजलास में इस वक्त मौजूद हैं। अहम फैसले किए जा रहे हैं। इस हवाले से पंजाब काबीना के लिए मुशावरती इजलास शुरू हो चुका है। मजीद बात करेंगे न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे हनीफ खान ने हमें ज्वाइन किया। हनीफ, बताइएगा इस इजलास से मुतालिक। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बनीगाला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के रिहाइशगाह के बाहर। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास शुरू हो चुका है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार समेत दीगर मुजव्विज़ा जो काबीना है वो शिरकत कर रही है। इमरान खान के ज़ेर सदारत ये इजलास जारी है। ज़राए का कहना है कि इमरान खान 1 to 1 जो मुजव्विज़ा काबीना के अरकान हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे इंटरव्यू भी करेंगे। ज़राए का ये भी कहना है कि आज ये काबीना फाइनल किया जाएगा और शाम तक मुतवक्किल है कि इमरान खान ये ऐलान करे मुजव्विज़ा काबीना का। जी बहुत शुक्रिया हनीफ खान, अपडेट कर रहे थे। असलम इकबाल, महमूद रशीद, फयाजुल हसन चौहान समेत दीगर अरकान भी यहाँ पर मौजूद हैं। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद हुज्जाज की वापसी कल से शुरू होगी। पहले दिन 4 परवाज़ों के जरिए 960 हुज्जाज कराम इस्लामाबाद और पेशावर पहुँचेंगे। 8 से 12 फ्लाइट्स रोज़ाना आज़मीन को लेकर वतन वापस पहुँचेंगी। 25 सितंबर को फ़्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल होगा। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद हुज्जाज की वापसी कल से शुरू होने जा रही है। पहले दिन 4 परवाज़ों के जरिए 960 हुज्जाज कराम इस्लामाबाद और पेशावर पहुँचेंगे। 8 से 12 फ्लाइट्स रोज़ाना आज़मीन को लेकर वतन वापस पहुँचेंगी। 25 सितंबर को फ़्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल होगा। दुनिया के 50 मुल्कों से हज पर आए खादिम हरमैन शाह सलमान के 5000 से ज़ायद मेहमानों के एजाज़ में मदीना मुनव्वरा में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर अब्दुल बारी ने शाही मेहमानों से खुसूसी मुलाकात की। इमाम मस्जिद नबवी ने शाही मेहमानों को हज की मुबारकबाद और कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए गाइडलाइन दी। पाकिस्तान से रवां साल हज करने वाले 40 शाही मेहमान भी तकरीब में शरीक हुए। डॉक्टर अब्दुल बारी ने पाकिस्तान मेहमानों से खुसूसी मुलाकात की और पाकिस्तान के लिए नेक जज्बात का इजहार किया। इमाम मस्जिद नबवी ने पाकिस्तानी कौम को बेहतरीन कौम करार दिया। रवां साल शाही हुज्जाज में पाकिस्तानी वफ़द तीसरा बड़ा वफ़द था। पाकिस्तानी हुज्जाज कराम तादाद में दूसरे नंबर पर थे। पाकिस्तानी हुज्जाज कराम को सऊदी अरब की तरफ से दी जाने वाली खिदमात पर शुक्रिया अदा किया। बैनुल-अक़वामी मंज़रनामे से खबर शामिल करते हैं। अमरीकी सेनेटर जॉन मकेन 81 वर्ष की उम्र में चल बसे। वो दिमाग के कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। जॉन मकेन ने 1 रोज़ कबल मज़ीद इलाज जारी रखने से रोक दिया था। वो 6 बार सेनेटर मुंतखब हुए। ओबामा से सदारती इलेक्शन हारे। अमेरिका एक बड़े सियासतदान से महरूम हो गया। जॉन मैकेन के वालिद अमेरिकी बहरिया में कमांडर और दादा एडमिरल थे। उन्होंने अमेरिकी फजाइया में फाइटर पायलट की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दी। जॉन मैकेन 35 साल सियासी कैरियर में रिपब्लिकन पार्टी से 6 बार सेनेटर मुंतखब हुए। वो अपनी पार्टी की पॉलिसियों पर खुलकर इख्तिलाफी मौक़िफ़ का इजहार करते थे। जॉन मैकेन 2008 के सदारती इंतखाब में बराक ओबामा से इलेक्शन हार गए थे। जॉन मैकेन के इंतकाल पर सदर डोनाल्ड ट्रंप और आलमी रहनुमाओं ने दुख और गम का इजहार किया। उधर अफगान सदर ने वज़ीर दिफा, दाखिला और खुफिया एजेंसी के सरबराह के इस्तीफे कबूल करने से इनकार कर दिया। अशरफ गनी ने मुशीर कौमी सलामती का इस्तीफा कबूल कर लिया। अफगान मीडिया के मुताबिक मोहम्मद हनीफ के इस्तीफे के बाद सदर अशरफ गनी ने अमरीका में तैनात सफ़ीर हमदुल्ला मुहिब को कौमी सलामती का मुशीर मुकर्रर कर दिया। सिक्योरिटी उमूर पर इख्तलाफात के बायस गुज़श्ता रोज़ अफगान वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला और खुफिया एजेंसी के सरबराह और मुशीर कौमी सलामती ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। उधर ईरान में हसन रूहानी की हुकूमत को एक और धचका। ईरानी पार्लियामेंट ने वजीर खजाना मसूद करबासियान की मवाख़ज़े की तहरीक मंजूर कर ली। ईरानी वजीर खजाना पार्लियामेंट में एतमाद का वोट लेने में नाकाम रहे।
مواخذے کی تحریک میں 137 جبکہ مخالفت میں 121 ووٹ پڑے۔ مسعود کرباسیان سے پہلے ایرانی پارلیمنٹ وزیر محنت علی روی کا بھی مواخذہ کر چکی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ نے حکومت کی معاشی ٹیم میں تبدیلی کا مطالبہ کیا تھا۔ اور ایران زلزلے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ایران کے مغربی صوبے کرمانشاہ میں رات گئے 6.1 شدت کا زلزلہ آیا جس کا مرکز کرمانشاہ کے شمال مغرب میں 16 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق 243 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ زلزلے کے جھٹکے عراق میں بھی محسوس کیے گئے۔ جولائی میں بھی اسی علاقے میں زلزلے سے 150 افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس خبر کے حوالے سے۔ ایران زلزلے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 200 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ایران کے مغربی صوبے کرمانشاہ میں رات گئے 6.1 شدت کا زلزلہ آیا جس کا مرکز کرمانشاہ کے شمال مغرب میں 16 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ اور اب نیوز سپورٹس۔ اب مدرسے کے طلبہ بھی کھیلیں گے پروفیشنل کرکٹ۔ پاکستان کی ہو گئی پہلی مدرسہ لیگ۔ زلمی مدرسہ لیگ کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا۔ لیگ کے میچز 28 سے 31 اگست تک ارباب نیاز اسٹیڈیم پشاور میں کھیلے جائیں گے۔ زلمی کے چیئرمین جاوید آفریدی کے مطابق لیگ کے انعقاد کا مقصد محبت، مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کے پیغام کو فروغ دینا اور مدرسے کے طلبہ کو مین سٹریم میں لانا ہے۔ کرکٹ لیگ 28 سے 31 اگست تک پشاور میں منعقد ہونے جا رہی ہے۔ اب مدرسے کے جو بچے ہیں وہ بھی کرکٹ میں حصہ لے سکیں گے۔ زلمی فاؤنڈیشن کی جانب سے پاکستان کی پہلی زلمی مدرسہ کرکٹ لیگ شروع ہونے جا رہی ہے۔ اور ایشیا کپ کا بڑا محاذ، پاکستانی ٹیم نے مورچے سنبھال لیے۔ آرمی اسکول آف فزیکل اینڈ ٹریننگ سینٹر ایبٹ آباد میں 27 اگست سے 4 روزہ فٹنس کیمپ کے کھلاڑیوں کو طلب کر لیا گیا۔ شعیب ملک اور عماد وسیم کیریبین لیگ چھوڑ کر نیشنل ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ مزید تفصیلات قادر خواجہ کی اس رپورٹ میں۔ صحرا میں ایشین ٹیموں کا سب سے بڑا مقابلہ، ایشیا کپ کے بڑے محاذ سے قبل بڑی تیاری۔ پاکستانی ٹیم کا ایبٹ آباد میں آرمی اسکول میں پڑاؤ۔ فٹنس کیمپ کے لیے 26 پلیئرز طلب کیے گئے۔ سی پی ایل میں مصروف کھلاڑی شعیب ملک اور عماد وسیم بھی اسکواڈ میں شامل۔ دیگر کھلاڑیوں میں فخر زمان، امام الحق، بابر اعظم، سرفراز احمد، آصف علی، شاداب خان، فہیم اشرف، حسن علی، محمد اصغر، محمد عامر، عثمان چنواری، محمد نواز، حارث سہیل، محمد حفیظ، یاسر شاہ، شاہین آفریدی، جنید خان، صاحبزادہ فرحان، شان مسعود، عثمان صلاح الدین، عاصف شفیق، بلال آصف، راحت علی اور میر حمزہ شامل ہیں۔ ایشیا کپ یو اے ای میں 15 سے 28 ستمبر تک کھیلا جائے گا جبکہ روایتی حریف بھارت اور پاکستان کا جوڑ 19 ستمبر کو پڑے گا۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں اچھا موسم اور چھٹی کبھی کبھی اکٹھے ملتے ہیں۔ عید کی چھٹیوں کا آخری دن اور موسم انجوائے کے لیے لوگ تفریح گاہوں کا رخ کر رہے ہیں۔ ایسے موسم میں بچوں کو ان کی پسندیدہ جگہ مل جائے تو ان کی خوشی دیدنی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گی نیو نیوز کی نمائندہ سدرا ڈار۔ جی، اتوار کا روز ہے اور کراچی میں کہیں سی ویو پر رش ہے تو کہیں کراچی کے چڑیا گھر میں کافی رش ہے کیونکہ آخری اتوار ہے اور بچے عید ابھی بھی منا رہے ہیں۔ بچوں کے لیے ویسے تو ہر چھٹی کا دن عید سے کم نہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج آخری اتوار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بچوں نے گہما گہمی اور رونق عروج پر پہنچا دی ہے۔ کراچی کے چڑیا گھر میں آج بھی بچے آئے ہیں، منموجی کر رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں۔ یہ بتائیں آج کا دن کیوں آئے ہیں یہاں پہ؟ ہم گھومنے آئے، کل ہمارا اسکول سٹارٹ ہوگا، آج آخری دن ہے، ہم نے شہر بندر سارا کچھ دیکھنے ہیں، آخری دن ہے کیونکہ آج آخری دن ہے۔ آج بہت ساری جگہوں پہ جانا ہے، چڑیا گھر آئے ہیں، یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں، اس کے بعد یہاں سے دوسری جگہوں پہ بھی جائیں گے۔ تو آج کافی گہما گہمی ہمیں دکھائی دے رہی ہے، سیکیورٹی کے انتظامات بھی ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ زیادہ رش بچوں کا ہے اور ان کی کوشش زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ وہ آج جہاں جہاں جا سکتے ہیں وہاں پر جائیں، تفریح کر لیں، کیونکہ کل سے پھر اسکول شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا اس موج مستی کا۔ جی، ادھر کراچی کی طرح لاہور میں بھی بچے اپنی چھٹی کو بھرپور انداز میں انجوائے کر رہے ہیں۔ چھٹی کے روز بچوں سمیت فیملیز کی کثیر تعداد نے رخ کیا ہے لاہور چڑیا گھر کا۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گی نیو نیوز کی نمائندہ ربا عروج۔
जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर चिड़ियाघर में मौजूद हूँ मैं, और आज ईद ख़त्म होने के बाद भी ईद का समा है यहाँ पर, क्योंकि बच्चों की और फैमिलीज़ की बड़ी तादाद हमें यहाँ नज़र आ रही है और छुट्टी है, और ऐसा लग रहा है कि ईद की आखिरी छुट्टी आज है, क्योंकि लाहौर चिड़ियाघर में एक बड़ी तादाद जो है वो शहरियों की नज़र आ रही है, और सिर्फ लाहौर से ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों से आने वाले यहाँ पर फैमिलीज़ भी मौजूद हैं। बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि लाहौर चिड़ियाघर आए, क्या सबसे अच्छा लगा, क्या नाम है आपका? आयशा। अच्छा आयशा, चिड़ियाघर में क्या क्या देखा है, कैसा लग रहा है? मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत अच्छा चिड़ियाघर। आपको कितना मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा। क्या क्या देखा? हमने बटरफ्लाई देखी, स्पैरो देखी, बहुत सारी चीज़ें देखी। बहुत सारी चीज़ें देखी। लाहौर चिड़ियाघर एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबके लिए ही तफरी का समा मौजूद होता है, और जानवरों को देखकर, उनकी अटकेलियों को देखकर जो आने वाले जो शायकीन है वो महसूस होते हैं। जी। और दुनिया भर की तरह पाकिस्तान के हिंदू अक्सरियती शहर उमरकोट में भी भाई बहन के प्यार का अनोखा और मोहब्बतों भरा त्यौहार रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। इस त्यौहार पर बहनें अपने भाई के हाथ की कलाई पर एक धागा बांधकर मोहब्बत का इजहार करती हैं। इसे राखी बंधन कहा जाता है। इस मौके पर भाई भी अपनी बहनों को तोहफे देते हैं और उनकी देखभाल का वादा करते हैं। इस त्यौहार पर बहनें न सिर्फ अपने हिंदू भाइयों को बल्कि मुंह बोले मुसलमान भाइयों को भी राखी बांधती हैं। ये त्यौहार मजहबी होने के साथ सकाफती भी है, जो मोहब्बत बढ़ाने का दर्स देता है। और कसूर के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा बुल्ले शाह के 261 में उसकी 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया। बड़ी तादाद में यहाँ लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। मज़ीद बताएंगे न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे शहरोज से। जी बिल्कुल, बरसगीर के अजीम सूफी शायर हज़रत बाबा बुल्ले शाह की 261 उर्स की तकरीबात को ख़त्मी शक्ल दे दी गई हैं। इस मौका पर हाज़रीन की बहुत बड़ी तादाद ने अभी से ही दरबार पर आना शुरू कर दिया है, और इस हवाले से हाज़रीन को के लिए पुलिस की तरफ से फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, जिसमें पुलिस की तादाद में 18 से ज़्यादा अफसरान और पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे, ताकि हाज़रीन को सिक्योरिटी फुल इंतजाम दिए जा सकें। और इस हवाले से मैं बताता चलूँ, ट्रैफिक की रवानगी के लिए भी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी इस हवाले से अपने खत्मी कर दिए गए हैं, और रूट का इंतजार कर दिया गया है, ताकि ट्रैफिक में रवानगी को मुसलसल कोई रुकावट पेश न आए। अहम खबर शामिल करते हैं। वजीर रेलवे का रवैया नॉन प्रोफेशनल है, शेख रशीद के मातहत काम नहीं कर सकता। चीफ कमर्शियल मैनेजर हनीफ गुल ने 730 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। अपडेट कर रहे हैं आपको इस अहम खबर के हवाले से। वजीर रेलवे का रवैया नॉन प्रोफेशनल है, शेख रशीद के मातहत काम नहीं कर सकता, ये कहना है चीफ कमर्शियल मैनेजर हनीफ गुल का, जिन्होंने 730 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है। चीफ कमर्शियल मैनेजर रेलवे ये कहते हैं कि वो शेख रशीद के मातहत काम नहीं कर सकते। वजीर रेलवे का जो रवैया है वो नॉन प्रोफेशनल है, इस तरह से काम नहीं किया जा सकता। चीफ कमर्शियल मैनेजर हनीफ गुल ने 730 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। आपको बताते चलें कि शेख रशीद को वजीर रेलवे बना दिया गया है, और दावे उनकी जानिब से किए जा रहे हैं कि 20 दिसंबर तक रेलवे का जो खसारा है वो उसको पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। और अपोजिशन जमातों का मुतवक्किल सदारती उम्मीदवार सामने आने की उम्मीदें बढ़ने लगीं। पीपल्स पार्टी ने सदारती उम्मीदवार के लिए एतजाज़ अहसन की जगह यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर गौर शुरू कर दिया। सदारती उम्मीदवार के यूसुफ रजा गिलानी का नाम आसिफ अली जरदारी ने तजवीज़ किया था। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने भी यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर इत्तफाक का इंदिया दे दिया। मज़ीद बात करेंगे न्यू न्यूज़ के नुमाइंदा बेनज़ीर मेहदी ने हमें ज्वाइन किया। बेनज़ीर, बताइएगा इस नाम को अभी फाइनल कर लिया गया? देखें, बिल्कुल जैसे कि कल से ये एक कंट्रोवर्सी चल रही है एतजाज़ अहसन के नाम पे, जो कि पेश किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदारती उम्मीदवार से, और एक जो है मुत्तहिद ऑपोजिशन की जानिब से एक उम्मीदवार लाने पड़ता, लेकिन एतजाज़ अहसन के मुतनाज़ा बयान की वजह से ये नाम एक्सेप्टेबल नहीं था मुस्लिम लीग नून के लिए। अब रात को जो है वो रात गए तक आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत सर जोड़कर बैठी रही है, और उसने जो है वो हमारे ज़राए का ये कहना है कि किसी हद तक जो यूसुफ रजा गिलानी है, साबिक वजीर आजम भी रहे हैं, उनका नाम जो है वो सदारती उम्मीदवार के लिए पेश किया गया है। बहुत शुक्रिया बेनज़ीर मेहदी, हमें अपडेट कर रही थी। उधर कनाडा में योकोन के जंगलात में लगी आग ने रात की तारीकी में आसमान पर मुख्तलिफ रंग भर दिए, और पीटीवी की मारूफ अदाकारा खालिदा रियासत को बददाहों से बिछड़े 22 बरस बीत गए, लेकिन उनके किरदारों की बाज़ गश्त आज भी सुनाई देती है। शकील जाहिद की रिपोर्ट देखते हैं। किसी ज़माने में ये भी एक भरपूर शहर था जहाँ पे खुशियाँ थी, रंगीनियाँ।
مجھے اپنی کلاس میں نہ تو یہ غیر سنجیدہ رویہ پسند ہے اور نہ ہی اس طرح کی فضول حرکتیں پسند ہیں۔ 1 جنوری 1953 کو کراچی میں پیدا ہونے والی پی ٹی وی کی مقبول اداکارہ خالدہ ریاست نے 70 کی دہائی میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ قدم قدم پہ مشورہ، کیا کمپلیکس ہے ان کا، ہمارا سانس نہیں رکتا۔ سانس تب رکتا ہے جب مدافعت کی جائے۔ خالدہ ریاست نے ایک محبت سو افسانے، بندش، دھن، لازوال، نشے من، کھویا ہوا آدمی، سائے، تعبیر، پڑوسی اور درجنوں ڈرامہ سیریز میں اداکاری کا لوہا منوایا۔ معین اختر کے ساتھ سلور جوبلی میں کام کر کے ثابت کیا کہ وہ سنجیدہ ہی نہیں بلکہ مزاحیہ کردار بھی خوبصورتی سے ادا کر سکتی ہیں۔ گھورنا دیکھنے میں جو فرق ہے مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ تمنا کلیم کو دیکھتے ہی تمہاری آنکھیں ایسے کھل جاتی ہیں جیسے پاکستانی سوٹ کیس بند ہی ہونے پہ نہیں آتی ہیں۔ ابھی خالدہ ریاست کی کامیابیوں کا سفر